Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of building. We have started unit number 2, that is types of lamp. Today is our lecture number 4 and in today's lecture we are going to discuss about mercury vapor lamp, in which we will discuss about high pressure mercury vapor lamp, mercury iodide lamp. Before starting today's lecture, let us quickly revise what we have learned in our previous lecture, that is in lecture number 3. In previous lecture, we learned about working principle of fluorescent lamp, construction of fluorescent lamp, working of fluorescent lamp, advantages and disadvantages of fluorescent lamp. Learning outcomes of this session. After watching this video, student will be able to learn about working principle of mercury vapor lamp, types of mercury vapor lamp, construction of high pressure mercury vapor lamp, working of high pressure mercury vapor lamp, mercury iodide lamp, application of mercury vapor lamp. These things we will discuss in today's topic, and these are the POs which are mapped for today's session. Mercury vapor lamp. So first we will discuss about working principle of mercury vapor lamp. When mercury discharge under low pressures give mainly UV radiation. If pressure is increased to 1 or 2 atmosphere, its proportion of radiation in visible spectrum is increased and we get a light of bluish color. So क्या होता है कि जब मर्क्यूरी लो प्रेशर के अंडर डिस्चार्ज होता है तो उसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं वो मेनली यूवी रेडिएशंस होते हैं. अगर मर्क्यूरी के ऊपर का जो प्रेशर है, मर्क्यूरी का प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं 1 या 2 एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर क्या होता है? प्रेशर का यूनिट. सो अगर हम प्रेशर को 1 या 2 एटमॉस्फेयर से बढ़ाते हैं तो जो रेडिएशन के प्रोपोर्शन है वो विजिबल साइड में ज्यादा जाएंगे, यानी विजिबल साइड में जो रेडिएशंस है उसका प्रोपोर्शन विजिबल साइड में बढ़ेगा और हमें क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा और वो लाइट का कलर क्या होगा? ब्लूइश कलर होगा. ये है मर्क्यूरी वेपर लैम्प का वर्किंग प्रिंसिपल. Mercury vapor lamp has following types: high pressure mercury vapor lamp, low pressure mercury vapor lamp and mercury iodide lamp. High pressure mercury vapor lamp जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HPMV. This is diagram of high pressure mercury vapor lamp. This is AC supply given to the lamp. This capacitor is used as power factor correction capacitor. ये जो चोक है इसका यूज होता है वोल्टेज प्रोवाइड करने में, स्टार्टिंग के लिए हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने में. दिस इज स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड. ये फिलामेंट की तरह काम करता है जो कि टंगस्टन का बना होता है. ये हाई रेजिस्टेंस है. 2 इलेक्ट्रोड, मेन इलेक्ट्रोड 2 है, इसको हम कहेंगे मेन इलेक्ट्रोड 1 and this we will call as main electrode 2. ये इनर ट्यूब है, इसके अंदर गैसेस फिल्ड होते हैं और ये इनर ट्यूब को में से थर्मल डिसिपेशन रोकने के लिए ये आउटर ट्यूब दिया जाता है. ये दोनों ट्यूब के बीच में क्या होता है? वैक्यूम होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प. High pressure mercury vapor lamp consists of choke. Choke is acting as the ballast. At the time of supply voltage variation, the current flowing through the inner tube is maintained constant to keep uniform light intensity.
चोक क्या करता है, बलास्ट के जैसे काम करता है, यानी वो वोल्टेज सप्लाई देता है। अगर वोल्टेज में कुछ वेरिएशन होते हैं तो वो वेरिएशंस को भी मेंटेन करता है, ताकि जो हमें मर्क्यूरी वेपर लैम्प से जो लाइट मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी एक सरीकी रहे। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, या फिर उसे लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। Whenever current flow through the starting resistance, there is a I2R loss, which is converted into heat. If the temperature of this heat goes near to 600 degrees Celsius, then inert gases ionization start. जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है, अगर उसमें से करंट पास होता है तो करंट पास होने के कारण क्या होगा, I2R लॉसेस होगी। अब ये करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये I2 लॉस आर लॉस भी बढ़ेंगे, और ये जो लॉसेस है फिर वो हीट में कन्वर्ट होंगे, और जब टेम्परेचर हीट डेवलप होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचेगा तो जो अपने इनर ट्यूब में जो गैसेस प्रेजेंट थे उनका आयोनाइजेशन होना स्टार्ट होगा। Next is auxiliary electrode and main electrode. The ionization takes place through the inert gases whenever current flows from auxiliary electrode to main electrode. जो गैसेस का आयोनाइजेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है, जब करंट ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से मेन इलेक्ट्रोड तक फ्लो होता है, यानी जब करंट ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से मेन इलेक्ट्रोड का पाथ कंप्लीट करता है तब गैसेस का आयोनाइजेशन स्टार्ट होता है। इनर ट्यूब, द वेरियस इनर गैसेस एग्जाम्पल आर्गन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा with mercury powder are filled in the inner tube at 5 to 7 times the atmospheric pressure. जो इनर ट्यूब में क्या होता है, आर्गन, नाइट्रोजन और मर्क्यूरी पाउडर फिल किया जाता है, और इसका प्रेशर कितना होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे लगभग 5 से 7 गुना ज्यादा प्रेशर पर इनर ट्यूब में ये सारी गैसेस को और मर्क्यूरी पाउडर को फिल किया जाता है। नेक्स्ट इज आउटर ट्यूब। द फंक्शन ऑफ आउटर ट्यूब इज टू मेक द वैक्यूम सराउंडिंग द इनर ट्यूब टू अवॉइड थर्मल डिसिपेशन। द आउटर ट्यूब का काम क्या होता है, थर्मल डिसिपेशन को रोकना। आउटर ट्यूब और इनर ट्यूब के बीच में क्या होता है, वैक्यूम, जो कि थर्मल डिसिपेशन को रोकता है। गैसेस को आयोनाइज होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, और ये वैक्यूम के कारण जो अंदर टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, वो कम नहीं होता। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर। द फंक्शन ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर इज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर का काम क्या है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प। ये डायग्राम तो हमने पहले ही डिस्कस की है, सो वी विल नाउ डिस्कस द वर्किंग। व्हेनेवर सिंगल फेज 230 वोल्ट AC supply is provided to the discharge tube of mercury vapor lamp, initially the current flows from phase to the choke to the starting electrode to neutral. जब यहाँ पर 230 वोल्ट सिंगल फेज AC सप्लाई दिया जाता है तो वो चोक से होकर कहा जाता है, चोक से लेकर फिर ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के पास ये जाता है और फिर न्यूट्रल के पास जाता है। The starting electrode or resistance is made up of tungsten filament having more resistance, so that whenever current flow through the tungsten filament as per thermal emission, the light is emitted to the filament. अब क्या होता है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड जो होता है ये बना होता है टंगस्टन का, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, सो जब भी इससे करंट फ्लो होता है थर्मल इमिशन के कारण क्या होता है, इससे लाइट एमिट होता है, ये फिलामेंट से क्या होता है, लाइट एमिट होता है। At the same time, the rated voltage is applied between the main electrode number 1 and the main electrode number 2
Due to this voltage, there will be collision of neon gas and particle and current will start to flow through the discharge tube. अब क्या होता है, उसी समय पर जब यहाँ पर ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर फिलामेंट जो है वो जिसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, उसी समय पर ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो है हाई वोल्टेज अप्लाइड होता है और इस हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है, ये अंदर जो गैसेस है, इनर्ट गैसेस, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका एक दूसरे के साथ कोलिजन स्टार्ट हो जाता है. Whenever temperature surrounding the inert tube increases up to 600 degrees Celsius, the mercury powder will start vaporizing and the continuous collision process of all inert gases take place so that the light emitted to the discharge tube. अब जब I2R लॉसेस के कारण टेम्परेचर बढ़ता है और जब वो 600 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो जो मर्क्यूरी पाउडर था उसका वेपराइजेशन होता है और लाइट डिस्चार्ज ट्यूब से क्या होती है, एमिट होती है. लाइट रोशनी फैलने लगती है मर्क्यूरी के वेपराइजेशन के कारण. Next we will discuss about mercury iodide lamp. Construction is same as that of high pressure mercury vapor lamp. Mercury iodide lamp का construction same high pressure mercury vapor lamp जैसा ही है. In high pressure mercury vapor lamp, only mercury is added for filling the gap. In mercury iodide lamp, mercury and also iodide is added for filling the gap in light spectrum to improve the light characteristics. अब क्या होता है, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप में हमने सिर्फ मर्क्यूरी पाउडर ऐड किया था, पर आयोडाइड लैंप में, मर्क्यूरी आयोडाइड लैंप में हम मर्क्यूरी के साथ साथ आयोडाइड भी ऐड करेंगे. एज कम्पेयर टू हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, इफिशियंसी इज हायर. इफिशियंसी जो होती है मर्क्यूरी आयोडाइड लैंप की वो ज़्यादा होती है. इन हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप फॉर हायर इग्निशन चोक इज यूज्ड, whereas in mercury iodide lamp choke as well as ignition device is used. हमने हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप में जो है स्टार्टिंग के लिए चोक यूज किया था, पर आयोडाइड लैंप में हम चोक के साथ साथ सेपरेट इग्निशन डिवाइस भी यूज करेंगे. Advantages and application of mercury vapor lamp. Advantages: higher efficiency, इसकी efficiency बहुत ज़्यादा है. बेटर परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है. गुड लाइट क्वालिटी, इसकी जो लाइट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है. और इग्निशन इज इफेक्टिव, इसका जो इग्निशन है स्टार्टिंग में जो हम इग्निशन प्रोवाइड करते हैं बहुत इफेक्टिव होता है. एप्लीकेशन ऑफ मर्क्यूरी वेपर लैंप, फ्लड लाइटनिंग में ये यूज होता है, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग में भी यूज होता है और पब्लिक लाइटनिंग में भी यूज होता है. So, summary of today's video. In this video, we learn about following things. We learn about working principle of mercury vapor lamp, type of mercury vapor lamp, construction of high pressure mercury vapor lamp, working of high pressure mercury vapor lamp. We learn about mercury iodide lamp and application and advantages of mercury vapor lamp. So these all things we learned in today's lecture. Thank you and keep learning. In next lecture we will learn about compact fluorescent lamp, that is CFL. Thank you for watching.